students. Today in this video we will start a new chapter, third chapter, Journey to the End of the Earth. This is the third chapter of Vistas, and today we will start this one. But first of all we will do the introduction. पहले हम क्या करेंगे, इसका introduction करेंगे. चलिए देखिए. The name of the chapter is Journey to the End of the Earth. The writer of this chapter is Tishani Doshi. Who is the writer, beta? Tishani Doshi. Okay. लेट डिस्कस अ लिटिल बिट रिगार्डिंग राइटर. थोड़ा सा राइटर के बारे में बात करते हैं. टिशानी डोशी was born on 9 December 1975. So now at present she is 44 years old. Okay. She is a good poet. She is a good writer. She is a good dancer. She is a journalist also. She is a journalist also. Okay. Her mother was a Welsh and her father was a Gujarati. Her father was a Gujarati. Okay. Welsh, it's a name of a state. You can say that in a UK. UK के अंदर एक state है, and Gujarat you know very well. So these are the few things regarding Tishani Doshi. What did she described in this chapter? ठीक है, उसने इसमें क्या describe किया है? This chapter is a travelogue. बेटा, this chapter is a travelogue. Travelogue को समझना अब क्या है? Travelogue means where you are describing regarding journey. You traveled at any place and you are later you are describing your experience. ठीक है, in written form. So that writing work is called travelogue. तो उस writing work को, उस piece of writing को क्या कहेंगे? Travelogue, जिसमें traveling के regarding description है. So in this also there is a description regarding that particular place, and beside that that journey also. When she reached at the end of the earth. ठीक है, जब वो वहां पे पहुंचती तो उसी का उसने सारा डिस्क्रिप्शन दिया है. जर्नी वर्ड सजेस्टेड travelogue, but there is a need to understand to the end of the earth. Journey to the end of the earth. To the end of the earth refers to Antarctica, beta. It refers to Antarctica continent. She went there, Antarctica. And why end of the earth? So easy. She started her journey फ्रॉम मद्रास. ठीक है, उसने अपनी जो जर्नी स्टार्ट की थी बेटा, मद्रास से स्टार्ट की. यहाँ से मान लो उसने स्टार्ट की एंड शी रीच्ड एट दिस पार्ट अंटार्कटिका. दिस इज कंसिडर दिस इज द साउथ पोल. सो दिस इज कंसिडर द एंड पॉइंट ऑफ द अर्थ. दैट्स व्हाई द टाइटल इज गिवन जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ. व्हाई दिस टाइटल इज गिवन? बिकॉज शी स्टार्टेड हर जर्नी फ्रॉम मद्रास एंड शी रीच्ड Antarctica. Antarctica is considered the ending point of the earth. That's why the title is given Journey to the End of the Earth. चलिए, next point. Now, what is the theme of this chapter and what is described in this chapter? Take a little bit of discussion and then later we will continue. This chapter is divided in 3 parts. This chapter is divided in 3 parts. थीम की भी बात करेंगे बाद में, टाइटल की बात हो चुकी है. ठीक है, अब थोड़े कंटेंट की बात करेंगे, फिर थीम पे जाएंगे तो थोड़ा इजी समझ जाएगा. इन द फर्स्ट पार्ट देयर इज अ डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग फ्रॉम वेयर शी स्टार्टेड हर जर्नी. ठीक है, कहाँ से उसने अपनी जर्नी जो है वो स्टार्ट की. ठीक है, वेयर शी रीच्ड, कहाँ पे वो पहुंची. ठीक है, हाउ मच डिस्टेंस वॉज कवर्ड बाय टिशानी डोशी, कितना डिस्टेंस उन्होंने कवर किया. चलिए, सेकेंड पार्ट रिप्रेजेंट पार्ट ऑफ हिस्ट्री. हेडिंग इज गिवन बेटा पार्ट ऑफ हिस्ट्री. आपके बुक में हेडिंग गिवन है पार्ट ऑफ हिस्ट्री. व्हाई? बिकॉज शी कंसीडर दैट एंड शी रोट इन दिस चैप्टर, इफ यू वांट टू नो द प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर ऑफ द अर्थ, you want to know present, past and future of the earth, then Antarctica is the best place to go. Antarctica is the best place to go. Maybe got the thing? ठीक है. So what is described here means Antarctica is if you want to know the history, Antarctica is the best place from where you can know regarding पास्ट. आप किसके बारे में जान सकते हैं? पास्ट के बारे में जान सकते हैं. यू कैन ऑल्सो नो रिगार्डिंग प्रेजेंट, प्रेजेंट के बारे में जान सकते हैं. यू कैन ऑल्सो नो रिगार्डिंग फ्यूचर. ठीक है, उसके बारे में भी जान सकते हैं. आई विल डिस्क्राइब ऑल दीज थिंग्स. सारी बताऊंगी हाउ इट इज, कि प्रेजेंट को कैसे जान सकते हैं, पास्ट को कैसे, फ्यूचर को कैसे. ठीक है, बस सिर्फ थोड़ा सा टच कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा ब्रीफ में बता रही हूँ. चलिए, थर्ड बात करते हैं. देयर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ ह्यूमन इम्पैक्ट. यहाँ पे बेटा एक वर्ड यूज किया गया है, ह्यूमन इम्पैक्ट.
ठीक है, आपका जो चैप्टर में डिवीजन है ह्यूमन इम्पैक्ट, बट ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन अर्थ, ठीक है, कि आदमी का जो है वो अर्थ पे क्या इम्पैक्ट हो रहा है, हाउ इट्स natural resources, you can say that है, it's going toward its miserable condition, its resources are depleting, इसके जितने भी resources है वो क्या हो रहे हैं, deplete कर रहे हैं, and then there is a situation that it's losing its identity, कि अर्थ जो अपनी आइडेंटिटी है वो खोती जा रही है, नाउ इट्स गोइंग इन एलिंग सिचुएशन, ठीक है, एलिंग प्लेनेट आपने चैप्टर पढ़ा होगा ना 11th में, तो एलिंग सिचुएशन में, इन इलनेस सिचुएशन अर्थ इज सफरिंग अ लॉट बिकॉज ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज, ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ दिस वन, एंड शी आल्सो गिव द सेम एग्जांपल, उसने भी वही एग्जांपल दिया है, ठीक है, ह्यूमन इम्पैक्ट में, हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज आर गिविंग इफेक्ट ऑन अर्थ, कैसे ह्यूमन एक्टिविटीज जो है अर्थ पे इफेक्ट डाल रही है, ठीक है, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, ठीक है, मैं फोर्थ थोड़ा ऊपर लिखती हूँ बेटा, देयर इज अ फोर्थ पार्ट, देयर इज अ डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग वॉक ऑन द ओशियन, when she reached there and she walked on Antarctic ocean, then how did she feel, ठीक है, जब वहां पे ओशन पे वो चलती है तो वो कैसा फील करती हैं, देयर इज अ डिस्क्रिप्शन रिगार्डिंग दैट एक्सपीरियंस, यहाँ पे उस एक्सपीरियंस का भी क्या है बेटा, डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, सो दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इन दिस 4 पार्ट्स है बेटा, द लैंग्वेज ऑफ दिस चैप्टर इज सो टिपिकल, ठीक है, बहुत ज़्यादा टिपिकल इसकी लैंग्वेज है, a lot of typical words are used, and mainly the student who are having geography as a subject, they can understand in a very well manner, but science student they will face a little bit difficulty, ठीक है, उन्हें थोड़ी सी वहाँ पे प्रॉब्लम आएगी, they must know all these things regarding a map, a little bit things all तो नहीं कह सकते, little bit things regarding map also they must know, थोड़ी बहुत मैप के रिगार्डिंग भी उन्हें पता होना चाहिए, आई विल टेल यू, बताऊंगी आपको सारा वहां पे बीच बीच में, चलिए ये these 4 पार्ट्स है, दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इन these 4 पार्ट्स, इन 4 पार्ट्स में डिवाइड है, अब बातें बेटा थीम पे, सेटिंग पे, ठीक है, सेटिंग क्या है, थीम क्या है, हमने स्टार्ट किया इंट्रोडक्शन, फर्स्टली वी डिस्कस्ड रिगार्डिंग राइटर, देन वी डिस्कस्ड दिस व्हाट टाइप ऑफ राइटिंग पीस इट इज अ ट्रैवलॉग, ये क्या है, एक ट्रैवलॉग है, then later we discussed it, this chapter is divided in 4 parts, and in first one there is a description from where she started her journey and how much distance she covered to reach at her destination, ठीक है, then she described Antarctica is the best place where you can know regarding present, past and future of a earth, then she described the human impact on earth, okay, and global warming is the best example of this one, and her experience when she walked on the ocean, that is highlighted here. One more thing is left, why she was going there and who was arranging that journey, कौन उस पूरी जर्नी को अरेंज कर रहा था, ऐसे थोड़ी कि हम चले उठाई साइकिल और चलो अंटार्कटिका पे जाना है, ऐसा थोड़ी ना पॉसिबल है, वहां पे कुछ मोटिव था, ठीक है, एंड व्हाट वाज दैट, वो क्या था, उसको भी थोड़ा सा बताती हूँ, देयर वाज अ प्रोग्राम स्टूडेंट ऑन आइस, द नेम ऑफ द प्रोग्राम वाज स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम, ठीक है, they were going under this program there, वो वहां पे इस प्रोग्राम के अंडर गए थे, and this program was started by Geoff Green, who started this one, Geoff Green, and who is Geoff Green, a Canadian, ठीक है, कनाडा का रहने वाला है, a Canadian, ठीक है, why he started this, उसने इसको क्यों स्टार्ट किया, इस बात को समझिए, and there is a little bit change, यहाँ पे कुछ चेंज भी हुआ है, student on ice program that when it was started, during this program Geoff Green arranged ship and all the facilities for celebrities, देखिए इस बात को ध्यान से समझना, celebrities, for senior citizens, retired persons, you can say that, he arranged all the facilities for celebrities, for senior citizens, for what, they will go there and they will realize that how miserable condition the earth is having and how earth is reached at the edge of a destruction, ठीक है, कैसे वो वहां पे विनाश की जो है वो किनारे पे पहुंच चुकी हैं, but later he realized that there is no profit of that taking those celebrities and senior citizen on Antarctica,
because they most of these people have completed their age near about those of having 70, 80, 60, 70, you can say that, and this is considered the average age of human being. So he later he realized that there is no profit of this program. So later he realized that there is no profit means that they can't tell regarding those programs, and they can't do tell. Obviously they can tell, but they can't do anything for saving the earth, because they have nearly complete their life, almost they have completed their life. So later he decided to take high school students. तो बाद में उसने डिसाइड किया टू टेक हाई स्कूल स्टूडेंट्स, कि हाई स्कूल स्टूडेंट्स को लेके जाएगा, बिकॉज दिस इज द यंग जनरेशन. यंग जनरेशन विल रियलाइज दैट if they will not save the earth, then they have to face the problem in future. They are having their future before them. उनके सामने उनका पूरा फ्यूचर पड़ा है. So they will take the suitable step to improve the condition of the earth. अर्थ की कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए वो suitable step लेंगे. ठीक है. So this was the motive of student on ice program. This is the name of a प्रोग्राम. ये मेन चीज है आपकी इस चैप्टर की बेटा, एंड दिस इज द नेम ऑफ ए प्रोग्राम. इस प्रोग्राम का क्या है, नेम है. ठीक है. मैंने 5 बातें आपको बताई, डिस्टेंस वाली बताई, फिर हिस्ट्री वाली बात बताई, ह्यूमन इम्पैक्ट वाली बताई, वॉक ऑन द ओशियन वाली बताई, और एक स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम. थोड़ा थोड़ा मैंने ब्रीफ में टच कर दिया. नाउ कम ऑन द पॉइंट, थीम ऑफ दिस चैप्टर. इस चैप्टर का जो है वो थीम क्या है. ठीक है. अब थीम को समझना. द थीम ऑफ दिस चैप्टर इज मेनली, अब जो हमने अभी डिस्कस किया ना बेटा, वहीं से थीम निकलेगा. द राइटर वांट टू हाईलाइट ग्लोबल वार्मिंग. ठीक है. ग्लोबल वार्मिंग. द राइटर आल्सो वांट टू हाईलाइट अ ब्यूटी ऑफ नेचर. ब्यूटी ऑफ नेचर, नेचर की ब्यूटी को भी. इट्स आल्सो वांट टू हाईलाइट, जो यहाँ पे और ज्यादा वहां पे वो रिप्रेजेंट करना चाह रहा है, हाईलाइट करना चाह रहा है, दैट इज द पीसफुल एंड पीस एंड आइसोलेशन. ठीक है. आइसोलेटेड एरिया ऑफ अंटार्कटिका. जो ओ उसका है आइसोलेटेड एरिया, बिल्कुल अकेला. देयर इज अ वाइट लैंडस्केप, जो बहुत बड़ा वहां पे जो है वो आइस लैंडस्केप है, उसको भी वो हाईलाइट करना चाहता है. तो मेनली तो थीम है टू हाईलाइट ग्लोबल वार्मिंग एंड ब्यूटी ऑफ द नेचर, एंड हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज आर अफेक्टिंग नेचर. कैसे ह्यूमन एक्टिविटीज जो है वो नेचर को इफेक्ट कर रही है. बात यही आती है सारी, घूम फिर के कहीं भी चले जाओ. दिस इज द मेन पॉइंट. यही आपका मेन पॉइंट है. हाउ ह्यूमन एक्टिविटीज आर अफेक्टिंग नेचर. कैसे ह्यूमन एक्टिविटीज जो है वो नेचर को इफेक्ट कर रही है, एंड हाउ अंटार्कटिका इज द बेस्ट प्लेस टू नो रिगार्डिंग प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर ऑफ ए अर्थ. मे बी गॉट द थिंग. ये सारे क्या है बेटा, इसके चैप्टर के थीम है. टाइटल अब मैंने आपको बता ही दिया था. देखो हमने 3-4 बातें डिस्कस की हैं. पहले हमने राइटर के रिगार्डिंग डिस्कस किया, फिर हमने टाइटल के रिगार्डिंग किया. ठीक है. वाई दिस टाइटल इज गिवन टू दिस चैप्टर, एंड ऑफ द अर्थ रेफर टू अंटार्कटिका. किसको रेफर करता है बेटा, अंटार्कटिका को. एंड शी ट्रेवल्ड एट द सेम एट दैट प्लेस, दैट्स व्हाई, एंड दिस इज अ ट्रेवलॉग. दिस चैप्टर डिस्क्राइब रिगार्डिंग दैट जर्नी, सो दैट्स व्हाई द टाइटल इज गिवन जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ. देन वी डिस्कस्ड दिस चैप्टर इज डिवाइडेड इन 3 और 4 पार्ट्स. हमने डिस्कस किया कि वो 4-5 पार्ट में डिवाइड है. व्हाट इज गिवन दोस पार्ट्स, क्या दिया हुआ है, एंड दीज आर द थीम ऑफ दिस चैप्टर. ये इस चैप्टर के क्या है बेटा, थीम है. मे बी गॉट द थीम. नाउ वी कैन स्टार्ट रीडिंग. अब हम रीडिंग स्टार्ट करेंगे. चलिए देखिए. नाउ लेट्स स्टार्ट द रीडिंग बेटा. If you want to know more about the planets past, present and future, the Antarctica is the best place to go. Bon voyage. ठीक है. Bon voyage हैप्पी जर्नी बोलते हैं ना जैसे. ठीक है. उसे उसके लिए यूज होता है bon voyage. रशियन वर्ड इट इज. ठीक है. नाउ लिसन, दिस इज अ कोटेशन. ये स्टार्टिंग में इसने, बिकॉज दिस चैप्टर रिवोल्व अराउंड टू दिस कोटेशन. इसी कोटेशन की तरफ वो रिवोल्व करता है. व्हाट इज दिस भाई, अगर तुम प्लेनेट के, अर्थ के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को, आई टोल्ड यू ड्यूरिंग इंट्रोडक्शन, बता दिया मैंने इंट्रोडक्शन के दौरान, अगर उसको जानना चाहते हो, देन अंटार्कटिका इज द बेस्ट प्लेस. अंटार्कटिका क्या है, बेस्ट प्लेस है. ठीक है. देन राइटर सेज दैट, टिशाने डोशी. ठीक है. अर्लियर दिस ईयर आई फाउंड माई सेल्फ अब्रोड अ रशियन रिसर्च वेसल academic Sokolsky heading toward the coldest, driest, windiest continent in the world, Antarctica. ठीक है. अर्लियर दिस ईयर व्हेन शी रोट दिस चैप्टर, जब उसने इस चैप्टर को लिखा, उससे पहले वाले
साल की बात करिए कि भी इस साल से पहले, अब वो पहले वाला है या उससे पहले वाला है, इट्स नॉट क्लियर, कि भाई इस साल से पहले जब मैंने चैप्टर लिखा उससे पहले, आई फाउंड माई सेल्फ, मैं एक रशियन वेसल में थी, रशियन रिसर्च वेसल में, वेसल मीन्स शिप बेटा, SHIP शिप, समुद्री जहाज जो होता है, ठीक है। एंड नेम ऑफ दैट शिप वॉज अकेडमिक सोकलस्की, उसका नाम है ये अकेडमिक सोकलस्की। इट वॉज मूविंग टुवर्ड, ये कहाँ जा रहा था, इट वॉज मूविंग टुवर्ड द कोल्डेस्ट, जो सबसे ठंडा प्लेस है अर्थ का, सबसे ड्राई प्लेस है, सबसे विंडियस्ट कॉन्टिनेंट है जो वर्ल्ड का, ठीक है। एंड इट्स नेम इज अंटार्कटिका, इट वॉज गोइंग टू अंटार्कटिका, आई वॉज इन दैट रशियन शिप। My journey began 13.09 degree north of the equator in Madras and involved crossing 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water and at least as many ecospheres। ठीक है, मेरी जर्नी, यहाँ पे टिसानी डोशी है माई, ठीक है। माई जर्नी, मेरी जर्नी दैट इज स्टार्टेड फ्रॉम 13.9 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर। इक्वेटर आपको पता ही है, जिससे भी अर्थ 2 पार्ट में डिवाइड होती है, उसके जो सदर्न पार्ट है इक्वेटर का, उसके 13.9 डिग्री से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई एंड इट वॉज स्टार्टेड फ्रॉम मद्रास। ठीक है, कहाँ से स्टार्ट हुई थी, मद्रास से। एंड इट इन्वॉल्व द पर्टिकुलर जर्नी इन्वॉल्व 9 टाइम जोन्स, इसने 9 टाइम जोन्स को कवर किया। टाइम जोन समझते हो ना, फ्रॉम वेयर दैट टाइम इज मेजर्ड, जिस प्लेस से जो है टाइम मेजर होता है। जैसे आप इंडिया की वो होता है ना आपकी प्राइम मेरिडियन, जो आपकी लाइन होती है, तो प्राइम मेरिडियन कहाँ पे है, ठीक है, कहाँ पे है ये प्राइम मेरिडियन, जहाँ से कि वो देखिए कहाँ से होता है, आपके प्राइम मेरिडियन कहाँ है, यूके में, ठीक है। यूके ग्रीनविच, जहाँ जो पर्टिकुलर है ग्रीनविच मीन टाइम जहाँ से बोलते हैं, तो और इंडिया का कहाँ से मेजर होता है टाइम, इलाहाबाद से। तो दैट पर्टिकुलर प्लेस इज कॉल्ड टाइम जोन, उसे क्या बोलते हैं बेटा, टाइम जोन। 6 चेक पॉइंट्स, वहाँ पे उन्हें कितने क्या क्रॉस किया उन्होंने, 6 चेक पॉइंट्स को, भाई जहाँ से आप एक उससे बाउंड्री, एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जब एंट्री करते हैं तो चेक पॉइंट्स होते हैं ना। कंट्री क्या, आप एक सिटी से दूसरी सिटी में जाते हैं तो भी आपको भाई पुलिस मिलती है, तो उस पर्टिकुलर प्लेस को क्या बोलते हैं, चेक पॉइंट, जो चौकी बनी हुई होती है। तो उन्होंने 6 चेक पॉइंट्स को क्रॉस किया, ठीक है, आप कह सकते हैं भी 6 कंट्रीज को उन्होंने क्रॉस किया। 3 बॉडीज ऑफ वाटर, ठीक है, 3 जो है वो समुद्रों को, ओशियंस को उन्होंने जो है वो क्रॉस किया। एंड एट लीस्ट एज मैनी इकोस्फीयर्स, और बहुत सारे जो हैं वो इकोस्फीयर्स को उन्होंने क्रॉस किया, ठीक है। बिफोर रीचिंग एट अंटार्कटिका they covered these things are 9 time zones, 6 checkpoints, 3 bodies of water and many ecospheres। चलिए, by the time I actually set foot on Antarctica continent, I had been traveling over 100 hours in combination of a car, an aeroplane and a ship। ठीक है, इस टाइम तक वो एक्चुअली मतलब जो अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पे मैंने अपना पैर रखा, उससे पहले मैं लगभग 100 घंटे से कंटिन्यू, ठीक है, ट्रैवलिंग कर रही थी। एंड इन दोज 100 आवर्स आई ट्रैवल्ड इन अ कार, इन एन एरोप्लेन एंड इन अ शिप ऑल्सो। भी मैंने पहले कार में ट्रैवल किया, हो सकता है भी मद्रास से, और जो पर्टिकुलर एरोप्लेन में से उसने जो है वो उस पर्टिकुलर प्लेस तक गई जहाँ से उसने अकेडमिक सोकोलस्की में पहुँची। उसके बाद वो, तो उसने पहले कार से ट्रैवलिंग की, फिर एरोप्लेन से ट्रैवलिंग की, और फिर शिप से। एंड शी वॉज continually traveling from the last 100 hours। So my first emotion on facing Antarctica's expensive white landscape and uninterrupted blue horizon was relief। So when I reached Antarctica, she was fed up from that journey, इतने लंबी जर्नी से क्या हो चुकी थी, fed up। तो मेरा जो फर्स्ट इमोशन था, फर्स्ट फीलिंग थी आफ्टर सीइंग अंटार्कटिका, एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव का मतलब होता है बेटा फैला हुआ, जिसे बोलते हैं स्प्रेडेड, यू कैन से दैट, स्प्रेडेड वाइट लैंडस्केप, अनइंटरप्टेड वेयर देयर इज नो इंटरप्शन, जहाँ पे कोई इंटरप्शन नहीं है, कोई बाधा नहीं है, नो ऑब्स्टिकल, ब्लू होरिजन वॉज देयर, ठीक है, देयर वर नो clouds, clarity was there। That was my relief after seeing that area, that white area, that blue horizon, I felt relief। I refer to टिशानी डोशी। वंडर एट, ये आपके मेन है बेटा, ये यहाँ से भी क्वेश्चन निकलता है, यहाँ से भी निकलता है, अब तक हमने जितना पढ़ा है ना 4-5 क्वेश्चन निकलेंगे यहाँ से, ठीक है। देखिए फिर वो कहते हैं वंडर एट इट्स इमेंसिटी, इट्स आइसोलेशन, but mainly at how there could ever have been a time when India and Antarctica were part of the same landmass। ठीक है, वो हैरान, वंडर एट इट्स इमेंसिटी, इमेंसिटी
देन यू कैन से जहाँ जिसका कोई एंड ना हो, देर इज़ नो एंड पॉइंट, ठीक है। इनफाइनाइट जिसे बोलते हैं, असीम, जिसकी कोई सीमा ना हो, इनफाइनाइटनेस। द पर्टिकुलर लास्ट पॉइंट वॉज नॉट विजिबल, ठीक है। जैसे अर्थ का कहते हैं ना भी अर्थ का कोई लास्ट पॉइंट ऐसे विजिबल नहीं है, तो ऐसे वो कहते हैं वंडर एट इट्स इमेंसिटी, उसके इमेंसिटी पे मैं क्या थी, हैरान थी। एंड इट्स आइसोलेशन, उसके अकेलेपन पे भी, इट वॉज सो आइसोलेटेड, देर वर नो रेजिडेंस ऑफ एनी वन, कोई ह्यूमन बींग रह नहीं रहा था। बट मेनली एट हाउ देर कुड एवर हैव बीन अ टाइम, सबसे ज़्यादा तो मैं इस बात पे हैरान थी, देर वॉज अ टाइम व्हेन अंटार्कटिका एंड इंडिया दोज वर द पार्ट ऑफ द सेम लैंड मास, कि वो टाइम भी था कि जब अंटार्कटिका और इंडिया क्या थे, सेम लैंड मास थे। एंड इट इज़ ट्रू, यहाँ पे कोई ये नहीं है कि वो वैसे अपनी तरफ से बोल रहे, इट इज़ ट्रू बेटा, इंडिया एंड अंटार्कटिका दोज वर द पार्ट ऑफ सेम लैंड मास से। फर्स्टली द अर्थ वॉज डिवाइडेड इन 2 कॉन्टिनेंट ओनली, उसके बाद ये आपके जो हैं वो कॉन्टिनेंट बने हैं बाद वाले, पहले 2 ही कॉन्टिनेंट थे, एक अंगारा लैंड और एक आपका गोंडवाना लैंड, ठीक है, एक अंगारा और एक और गोंडवाना लैंड, ठीक है। तो इंडिया और अंटार्कटिका दोज वर the land masses of the same part है, those were connected with each other. Then later when Angara land and Gondwana land है, those were hit to each other, then later it was divided, बाद में इसका जो है डिवीजन शुरू हुआ। थोड़ा सा बोर्ड पे आपको जब कल शुरू करूँगी ना रीडिंग तब समझाऊंगी ये गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड, देन वी विल कंटिन्यू। यहाँ तक बेटा समझ आ गया होगा सबको, ठीक है। क्वेश्चन जो फर्स्ट हम बोले फर्स्ट उससे पार्ट से बनेगा, ठीक है। व्हाट वाज द नेम ऑफ द रशियन शिप, दिस वाज द नेम, ठीक है। हाउ मच एरिया दे कवर्ड बिफोर रीचिंग अंटार्कटिका, देन दिस वॉज फ्रॉम वेयर दे स्टार्टेड देयर जर्नी, फ्रॉम हियर, यहाँ से स्टार्ट की, ठीक है। वाई हाउ डिड शी फील आफ्टर रीचिंग अंटार्कटिका, शी वॉज सरप्राइज्ड, एंड वाई शी वॉज सरप्राइज्ड आफ्टर रीचिंग एट अंटार्कटिका, वहाँ पहुँचने के बाद सरप्राइज क्यों थी, बिकॉज ऑफ द एक्सपेंसिवनेस, वाइट लैंडस्केप एंड बिसाइड दैट देन क्लियर ब्लू होरिजन, ठीक है, उसने अभी बताया भी है, तो वो उसकी क्या है, सरप्राइजनेस है। तो ये आपके कुछ मेन क्वेश्चंस निकलेंगे, आगे कंटिन्यू जो है वो नेक्स्ट उसमें करेंगे। आई विल सेंड असाइनमेंट, यू विल ट्राई टू डू दैट वन, ओके। थैंक यू सो मच।